queries from what we discussed yesterday? Any questions? Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. No question from my side. Yes. Last time, any questions? Okay. Sir, So- can you please repeat? Hello? Sir, Yeah, I'm Sam. audible? Yeah. Yes, sir. Can you please repeat weighted average EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? Okay. So weighted average. Wait. Yeah. So ये case देखो एक बार. In this, have you understood this table? Yes, sir. Okay. Then, so ये जो 100 shares हैं, ये first 3 months के लिए, इसलिए इसको 100 into 3/12 किया है. Okay. और ये जो 120 shares है, next 6 months के लिए है, इसलिए 120 into 6/12 किया है. Yes, sir. So this 110 is for next 3 months, इसलिए वो 3/12 है. Yes, sir. Now Okay, the sir. last 110 ये 31st मार्च के बाद है, which means the financial year खत्म हो गया, इसलिए इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा. Okay. बस इसको बस सिंपल सॉल्व किया इस इक्वेशन को. Okay, sir. Thank you. Anything else? Oh, sir. Thank you. Okay. So हमने कल डाइल्यूटेड ईपीएस कर लिया था. इसमें किसी को डाउट है? ये एग्जांपल का हमने डिस्कस किया था. Okay. So in case no, dividends. So what do you mean dividend? Dividend represents share of profit which is being distributed to the shareholders, to the equity shareholders. So as we discussed yesterday, if the company has earned, if the EPS is assumed 2 rupees per share, so what does that mean? A company has earned 2 rupees per share, and out of that, so suppose if the company has declared dividend of 1.6, so which means company has, though the company has earned company has earned 2 rupees per share, but they're only distributing 1.6 out of the total 2 rupees to the shareholders, and remaining 0.4 per share is being retained back into the company. So hence, what is remember dividend? Dividend is the portion of the
profit which is being distributed to the shareholders. And this is not mandatory, which means the company might have profit, still company might decide not to pay dividend. That's allowed. There is no legal restriction or mandate that company has to definitely pay dividend, nothing like that. So it's completely the decision or the choice that company will decide to pay the dividend, if any. In spite of the fact the company has profit, company may decide not to pay dividends. And on what factors the payment of dividend is dependent is these, which means whether the company has funds or not, whether they have future opportunities to invest or not, what are the market expectations. So these are the factors basis which the company will decide whether they want to declare any dividends or not. Okay. Now, in terms of dividends, some of the companies have dividend policies. So, for example, the company has a dividend policy that they will pay 10% of the profit. So that could be one policy. Another way to look at it, the company does not have any fixed policy. They will pay basis what's the expectation of the investors. So these are the two variables basis which company decide how much dividend to pay. One is the trend, could be an historical trend or their dividend policy, or another is the investor expectation. For example, in a current environment, because of pandemic, a lot of companies have sales of a lot of companies have been impacted, and hence, suppose if the company has made a profit and the company does not pay the dividend, it's pretty okay because that's the expectation of the market. No investor is expecting companies to pay dividend in the current scenario because every company is struggling. Now, when we look at the dividend modeling, these are being categorized into two parts. One is the proposed dividend and second is the actual dividend paid. So proposed dividend is what you propose. Suppose if you propose to pay 1 rupee as a dividend, that's called as proposed dividend. And how much you actually pay is the dividend payment. Because you might propose to the board of the company 1 rupee, but the company board may actually approve 0.8. Hence, your actual payment would be 8.8, not the proposed dividend. Any questions in this point? And dividends proposed by the company will depend upon the profit for the year. These are generally a proportion or a percentage of your net profit. What is payout ratio? So for example, what is payout ratio? Suppose if the company has an EPS of, let's assume, 2 rupees, and company has dividend per share is, let's assume, 1.2. So company ka retained earning per share, company's retained earning per share is 0.8. Hence retention ratio is 0.8 divided by EPS, which means you earn 2 rupees, but you're retaining 8 paisa, which means 40% is your retention ratio. And your dividend payout ratio
The dividend payout ratio is 1.2 divided by 2, which is 60%. Any doubt till this point? ये calculations important है, पूछना हो तो पूछिए कुछ. ठीक है. So in case no question, then we move to the working capital. What do you mean working capital? Working capital is your current and in case you're not speaking. So, yeah. So change in sales would have an impact on change in debtors. And similarly, change in sales will also have an impact on change in inventory. And change in receivables and change in inventory both will give you change in current assets. So change in receivables and change in inventory both are your current assets. And change in payables will be your current liability. And we'll discuss what is working capital. Working capital is equal to current asset minus current liability, and hence this would impact this side and this would impact this side, hence your working capital are dependent on this flow chart. Okay. These are your ratios which you anyways would have done in your KPMG sessions, correct? So ratio analysis is being done. So I will skip these pieces. Coming to balance sheet side. Any questions, guys, so far before we move to balance sheet? Okay.
So again, balance sheet and financial state, you would have done this in the financial statement during your KPMG session. So this is pretty traditional balance sheet where you have current liabilities and non-current liabilities, and you have equity in the liability side. So these are three broad categories. And on the asset side, you have current asset and fixed assets. So in the assets, we have one item called investments. So in investments, probably broken down in two categories. One is short-term investments and long-term investments. So short-term investments is one which we're looking to liquidate in less than 1 year. And any investment that you want to hold for a period of more than 1 year are generally categorized in the terms of long-term investments. From an accounting perspective, there are certain investments which are called as investments under trading. So for example, inventory. Inventory is my asset, but that inventory is being meant for trading because you will sell off that asset. Similarly, some of the other examples which you will not sell off and you will hold for a long period of time is, for example, machinery. Any investment like fixed deposits. These are something that you will hold for a longer duration. Some of the other items that will come on the balance sheet is your cash. This will come from your cash flow statement. We discuss short-term investments, long-term investments. Investments in associates, this we discussed in the earlier class. So, for example, if you have made an investment of 100 rupees, if you made an investment of 100 rupees in some other company, and that company has made a profit of 100 rupees and you have a 20% stake, which means you will add 20 rupees more because your investment has gone up by 20 rupees because इस 100 rupees का 20% आपको belong करता है. So that's why this opening balance plus share of income. ठीक है. माइनस अगर आपने इन्वेस्टमेंट में से कुछ सेल ऑफ किया, लेट्स आपने अपनी 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट से 10 रुपीज सेल ऑफ कर दिए हैं और आपको 20 रुपीज में से 5 रुपीज का डिविडेंड मिल गया है, तो ये माइनस हो जाएगा एंड डिफरेंस इज व्हाट विल कम इन योर बैलेंस शीट. एनी डाउट इन दिस फॉर्मूला? Any questions for this class, investment in associate? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any questions on investment in associates? No, sir. So dividend from associates, how it's calculated? How it's calculated? So, for example, if the company has earned 100 rupees and you have 20% stake in that company, so 100 rupees का आपको 20 rupees profit आपका शेयर हो गया ना. उस 20 रुपीज में से अगर कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड पे कर दिया है तो वो आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है, वो तो कंपनी अनाउंस करती है कि कितना डिविडेंड पे कर रही है. Okay, sir. सो कंपनी ने जितना अनाउंस किया है वो डिविडेंड
उतना डिविडेंड आप माइनस कर दोगे, बिकॉज कंपनी 20 रुपीज इज व्हाट बिलोंग्स टू यू, बट उसमें से कंपनी ने 5 रुपीज तो आपको पे कर दिया ना, तो कंपनी के पास कितना आपका पैसा बचा? 5 माइनस हो जाएगा ना, 15 बचा ना। पीयूष, Sir. Yes, sir. क्लियर डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. Anybody else, any other question on this? ठीक है, then on the liability side you have pension obligations. Generally government companies में रहता है. So what is pension obligations? So in generally in government companies you would have seen the government employees after retirement they receive pension from their employer. Now from an employer perspective these are liabilities, because even if the employee has retired they still need to pay off and continue to pay off for a longer duration. ठीक है, so ये बहुत सिंपल रहता है. सो ये हर जुरिस्डिक्शन में डिपेंडिंग ऑन द लॉ एक परसेंटेज डिफाइन होता है, एक्स परसेंटेज. तो आपका जितना भी सैलरी होता है उसका एक्स परसेंटेज आपका डिडक्ट हो जाता है, एंड सम पोर्शन इज बीइंग एडेड बाय द एम्प्लॉयर. सो डिपेंडिंग अपॉन उस कंपनी में, अगर प्राइवेट कंपनी है, जनरली प्राइवेट कंपनीज में होता ही नहीं. एक गवर्नमेंट कंपनी है तो वहाँ पे एक परसेंटेज डिफाइन होगा. अगर आपकी सैलरी 100 है, चलो 5%, तो आपको 5 रुपीज पेंशन की एक पूल बनाया होता है, उसमें चला जाता है. And employer also adds certain portion, and when you retire this is being paid to you on a monthly basis. So equity equity का opening balance is nothing but my previous year closing balance. इसमें नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है, अगर लॉस होगा तो माइनस होगा, डिविडेंड्स माइनस होगा, नए शेयर्स इशू करे हैं तो प्लस होगा, शेयर्स बायबैक करे हैं तो माइनस होगा, और कुछ नए ईसॉप दिए हैं तो भी प्लस होगा, या कोई नए शेयर्स इशुएंस पे कुछ एक्सपेंस किया है तो भी ऐड होगा. देख लीजिए फॉर्मूला पे डाउट है तो पूछिए. In the last point, the pension obligation, there is an actuarial input required. So what does it actually mean by actuarial inputs? एक्चुअली इनपुट जो मैंने आपको बताया कि हर कंट्री में एक परसेंटेज डिफाइन होता है, उसको एक्चुअल इनपुट बोलते हैं, कि कितना आपको पेंशन पे करना मिनिमम रिक्वायरमेट है. तो देखिए मैंने कहा कि अगर 100 रुपीज का आपका सैलरी एंड 5% इज द लॉ व्हाट डिफाइंड, दैट्स कॉल्ड एज एक्चुअल इनपुट. कितना परसेंटेज होगा पेंशन का. Okay, sir. और वही लिखा है कि ये जो एक्चुअल इनपुट होता है ये इक्विटी एनालिस्ट को नहीं करना होता, उसकी कैपेबिलिटी से बाहर होता है, बिकॉज ये लॉ डिफाइन करता है. हाँ जी, इक्विटी में कोई डाउट? जो इक्विटी का फॉर्मूला मैंने बताया, कोई डाउट? सर आप ईसॉप को थोड़ा ओवरव्यू बता पाएंगे, बिकॉज आई वाज नॉट देयर. ESOP is employee stock option plan. तो अपने एम्प्लॉयज को जो आप शेयर इशू करते हैं उसको ESOP बोलते हैं. If a company is issuing shares
to their employees because they worked well और उनको रिवॉर्ड करना है, या फॉर दैट मैटर अगर रिवॉर्ड नहीं भी करना है वैसे शेयर इशू कर रहे हैं, so उसको ESOP बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. Okay, thank you. Any other question on this formula? सर स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस क्या है? So suppose अगर आप जब शेयर्स इशू करते हो तो आपको कुछ एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मशीन, आपने 100 रुपीज की मशीन खरीदी और आपने उस पर 10 रुपीज का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किया, तो आप अपनी बैलेंस शीट में उस मशीन की वैल्यू कितनी दिखाते हो? 100 + 10. ये जो नए करेक्ट एसेट्स होते हैं उस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको उसके वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है. करेक्ट. करेक्ट. सेम चीज यहाँ पे भी है. अगर मैंने नए शेयर्स इशू कर रहे हैं 100 रुपीज के और उस पर 10 रुपीज का एक्सपेंस इंकर करें, मान लो कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज पे किया है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, या कोई कोई फीस पे करी है, तो मैं अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 100 + 10 दिखाऊंगा. तो ये वो एक्सपेंसेस हैं. आपने जो नए शेयर्स अब इशू करे हैं, इन नए शेयर्स इशू के जो एक्सपेंसेस इंकर करें वो भी तो ऐड कर दोगे ना कैपिटल अपने इक्विटी में. ओके. एनीथिंग एल्स गाइस, दिस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछना है तो पूछो. ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये गलत फॉर्मूला होता है, कुछ बुक्स में जनरली ये भी लिखा होता है, सो दिस इज नॉट टू बी यूज्ड. दिस सेकंड फॉर्मूला इज व्हाट यू नीड टू यूज. जी लास्ट टाइम कोई डाउट है ये इक्विटी में? नो सर. ठीक है. सो moving to next part, cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुआ होगा, करेक्ट? जो आपके सेशंस हुए थे, सेशंस दैट वर कंडक्टेड विद KPMG, वहाँ पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो भी किया होगा, करेक्ट? हाँ सर. So but I will still brief you on this because ये important point है. ठीक है, तो हम मॉडलिंग करेंगे तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह यूज करेंगे, सो आई विल ब्रीफ यू ऑन दिस important points. ठीक है. So what do you mean by cash flow statement? So cash flow statement is a statement which tells you two things. First, कि इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है कैश का, क्योंकि इनफ्लो मीन्स द कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड आउटफ्लो मीन्स कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट ये बताता है कि इनफ्लो है कि आउटफ्लो. देन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक और चीज बताता है कि इनफ्लो है आउटफ्लो तो ठीक है,
बट किस कैटेगरी में वो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, एंड दिस बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो, second investing, and third is financing. So let's assume मैं आउटफ्लो को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ और इनफ्लो को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ. सो ईच कैटेगरी में वो बताता है कि माइनस कितना है, प्लस कितना है. ये दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है. पहला इट्स एन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, एंड सेकंड इज अंडर विच कैटेगरी out of these three, which is operating cash flow, investing cash flow and financing cash flow, वो इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है. यहां तक कुछ डाउट? Now, operating cash flows means any cash flow which is in and out because of your day-to-day operations. For example, your sales, purchases of raw material, salary expenses, ये सब आपके, so for example जब आप सेल करते हो तो वो इनफ्लो होगा पैसा अगर कैश सेल है तो. So when you're doing sales and if it is cash sale, this will be inflow of cash flow. But ये core operations है आपका, so वो operating activity हो गया. Similarly, अगर आपने purchase of raw material किया है तो वो भी आपकी core business का part है, तो वो minus हो जाएगा because when you do cash purchases, cash will go out and it's part of your core operations. Hence, operating cash flow में minus होता है. Investing cash flows होता है जहाँ पे आपके assets पे impact आता है plus or minus. For example, purchase of machinery. When you will purchase a machinery, so वो machinery आपका investment है, so पैसा बाहर जाएगा, outflow हो गया, so hence minus. Under which category? Under investing cash category. Similarly, आपको FD है, FD आपने break कर दी, तो cash inflow होगा because the money will come to your bank account, and investment category में वो plus हो जाएगा. Financing cash flow होता है जो आपके लाइबिलिटी साइड पे इम्पैक्ट करता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. फॉर एग्जांपल आपने नया लोन लिया, न्यू लोन, न्यू
न्यू लोन विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ द कैश. तो प्लस हो गया अंडर विच कैटेगरी? फाइनेंसिंग कैटेगरी. सिमिलरली आपने कोई पुराना लोन को रीपे किया है, तो जब पुराने लोन को जब रीपेमेंट करते हैं, so the repayment of the old loan will result in an outflow of the cash because वो repayment के लिए cash बाहर जाएगा and it will fall under financing category. Similarly आपने shares issue करे हैं, issue of the shares will result in a cash inflow, तो plus आएगा under financing. Similarly आपने कोई shares buyback करे हैं, so buyback of shares will result in a cash outflow, इसलिए minus under financing. ठीक है. So I know ये आपका हो चुका है cash flow statement as you're telling me in your KPMG sessions, but still मैंने थोड़ा सा brief दे दिया because I think ये important है cash flow statement. कोई doubt या question कुछ पूछना हो तो पूछो. Any questions, doubt for cash flow statement? Clear, sir. Okay. So कैश फ्लो मैंने आपको समराइज कर दिया है, इन्वेस्टमेंट्स बता दिया आपको, फाइनेंसिंग बता दिया. So yeah, so this brings us to the end of this part. जो फोरकास्टिंग का हमें कॉन्सेप्ट देखने थे. ठीक है. किसी कुछ पूछना है इंटायर फोरकास्टिंग पीस में? Anybody wants to ask anything, any questions, queries, guys, before we discuss in terms of what case study? I know we discussed briefly, but I think today is the right time to discuss those pieces. So कोई questions, doubt जो अभी तक हमने किया है फोरकास्टिंग का, before we go to case study related discussion? No? ठीक है. ठीक है. So this completes this piece. So what we've done is this. So for example, level 1 में जो आपके टॉपिक्स हैं वो हमने खत्म कर लिए आज. So we're done with the level 1 topics. ठीक है. Now what we'll do, from now from next session we'll start a case study. ठीक है. So because we're done with these pieces, इसमें से कुछ आपके KPMG ने लिए हैं. ठीक है. और ये टॉपिक मैंने लिए हैं. So which means this is done. Now we'll start with this case study जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें स्टार्टअप करना है, रनिंग करना है. We'll conclude on that, but I'm just telling you in terms of where we are and what's the plan for next few sessions is we'll take this case study, and this case study
will be nothing but an application of these topics that we have done. हम इन सब का एप्लीकेशन सीखेंगे कि ये सबको अप्लाई कैसे करते हैं. जो एक्सेल में हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, जो हमने फोरकास्टिंग में, मॉडलिंग में जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, so उसको यूज करते हुए how we will apply those concepts into the case study and we'll create modeling out of this is what we'll do. And then इस केस स्टडी का हम ये केस स्टडी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, तो हम इसका 1 पार्ट कर लेंगे विच इज अगेन लिंक टू लेवल 1. उसके बाद हम स्टार्ट विद लेवल 2 और लेवल 2 के टॉपिक्स करेंगे. देन ये केस स्टडी को वापस लाएंगे और यहाँ पे इस केस स्टडी का लेवल 2 करेंगे, बिकॉज हम वंस वी कंप्लीट विद लेवल 2 एंड देन हम लेवल 3 के टॉपिक्स कर लेंगे. देन इसी सेम केस स्टडी के अंदर हम लेवल 3 करेंगे. मतलब जैसे हर लेवल के बाद जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे उसका एप्लीकेशन इस केस स्टडी में या एडिशन उस केस स्टडी में आप करते जाओ. You guys understand in terms of approach what where we are and in terms of how this will get, what's planned for next few sessions. Guys, yes or no would help me to understand. Yes, sir. Okay with this plan. Yes, sir. Okay. Yes, sir. In terms of now, the question is which case study should we take? So there was 2 options, and I remember last time, I think most of you requested to take a startup. So let's conclude on that. So either we can take a running company for forecasting and modeling. So running company means I have an historical trend, have historical data. The company ka historical P&L balance sheet are available. So it's become relatively easy because I can just do the historical trend analysis and basis that 50-60% of data points are available with me. So hence that extent becomes relatively easy. Vis-a-vis if I start, so that's one case study that we can take. Or we decide to go with the startup concept where I do not have an historical data point and everything has to be created on your own, and this becomes more complicated to that extent. So you do, okay. So what's your preference? Which one would you prefer me to take? I just before you take your call or take those choices, just want to tell you that startup would be much more complicated, so it will become a little heavy for you guys, which means you will require to focus more and थोड़ा सा ज़्यादा आपको attention देना पड़ेगा because में काफ़ी ज़्यादा extra calculations आएंगी, ठीक है. So just but उसका value ज़्यादा है market में, especially जिस तरीके से अभी markets evolve होंगी इंडिया में. A lot of businesses will come into Indian markets because of what's happening around geopolitical issues जो चल रहे हैं. So उसमें बहुत ज़्यादा business start होगा for startup oriented segments and private equity space. So looking at next 3, 4, 5 years career perspective say, and from a job market perspective, of course, there would be more focus about these startups and new business segments. So yeah, these are the I think information or the facts that you need to be aware of before you take the call. So yeah, I'm more than happy to probably get your views in terms of which of these you want me to prefer, so that accordingly I can start working on preparing on that case study, and for next session we are good to go. Which of these would you prefer? You want me to take a running company, or you want me to take a startup kind of in case study for modeling and forecasting? What's your view, guys? Startup, sir. Startup. If possible. Rahul, देखो both possible नहीं होगी, especially the kind of in detail which I will go in. ठीक है.
what I can do, as I told you earlier, is what we can do, we can take a startup and parallelly मैं आपको रनिंग कंपनी दे सकता हूँ, आप वो करते जाइए, उसमें जो डाउट्स आप मुझसे पूछते जाइए, बिकॉज अगर आप स्टार्टअप कर लेते हैं, एज आई टोल्ड यू, दैट्स मोर एडवांस, रनिंग कंपनी उसका सबसेट ही होगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या हम दोनों कर सकते हैं? जो हमारे पास टाइम है, द आंसर इज नो। हाँ, अगर आप मुझे बोले से दोनों करा दो, ठीक है, और इतना डेप्थ में मत जाओ, देन वी कैन डू बोथ, व्हिच मींस यू विल नॉट गेट द कंप्लीट डेप्थ of either of these. It will do 50-60% of one and 50-60% of the another. That's something that if you prefer, I'm more than happy to do. But if you want to do it from scratch, which means how does it work in a real transaction, real market, from step one to last step of finally submitting to the client, that will be extensive. वो 1-2 महीने चलेगा, ठीक है? It's not that something will get wrapped up in a 1 session or 2 session, ठीक है? It will go for a month or so, ठीक है? So hence, let's take a call. अगर आपको दोनों करना, I'm fine with it, but दोनों में आपको full, फिर you will get 50-60% of each of these. Hence, आप लोग decide करिए कि which of these methods are. What my suggestion of what I've done for some of the batches is, we take more complicated in the class, and parallelly students start working on the running company, because उसमें आपको कुछ नया कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, जो कॉम्प्लिकेशन क्लास में सिखा दिया वही आएगा, वो आपको सिखा चुके होंगे। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज ये होती है कि स्टार्टर में कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन है जो आपको रनिंग कंपनी में नहीं आएगी, बट आपने क्लास में मेरे साथ सीख ही ली होगी। सो दीज आर दी अवेलेबल, बट वी नीड टू टेक ए कॉल कि हमें दोनों करना है, विच मीन्स 50-60% ऑफ ईच ऑफ दीज, कि आधा वो देख लें, आधा वो देख लें, या एक पूरा देखना है, इज व्हाट वी नीड टू डिसाइड। So startup with वो थोड़ा साइड में पैरेलल का थोड़ा एक इसका रनिंग कंपनी के लिए जस्ट फॉर हाँ, स्टार्टअप तो फुल फ्लेज देखेंगे, और चाहे तो रनिंग कंपनी हम लोग आप थोड़ा थोड़ा बता दो। हाँ ठीक है, वैसे कर सकते हैं, तो उसमें आपको दोनों का विजिबिलिटी मिल जाएगा। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि वो मैं जो रनिंग कंपनी वाला है, मैं मैंडेटरी नहीं करूँगा जिन लोगों को इंटरेस्ट है, बिकॉज the program requires me to so some of the students might not have extra time or might not have extra interest or extra motivation. So जिनको इंटरेस्ट है वो एक्स्ट्रा वाला वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है, जिनके पास टाइम नहीं है, आई विल नॉट ट्राई एंड फोर्स एवरीवन, ठीक है? इज दैट ओके? वो तो आई थिंक ओके होना चाहिए, बिकॉज जिसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है रनिंग एक और करने का, वो कर सकता है, वो मुझसे पूछ सकता है, मुझसे डिस्कशन कर सकता है। जिसको नहीं इंटरेस्ट है, टाइम नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं है, या मोटिवेशन नहीं है, उसको फोर्स नहीं करेंगे। इज दैट ओके गाइस? आर यू कंफर्टेबल विद दिस अप्रोच? ओके सर, ओके, एग्री विद यू। Yes, sir. Because I don't want बाद में कोई आके बोले कि सर मेरे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं थी, आप 2-2 करवा रहे हो, एक ही की बात हुई थी, बिकॉज स्ट्रक्चर में एक करवाना था। सो बिकॉज देयर हैव बीन केसेस इन द पास्ट वेयर स्टूडेंट कम बैक कि सर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हमसे 2 मत करवाओ, एक की बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज I don't know whether you understand, ये बहुत बड़ा केस होता है, it will require lot of calculation and lot of time, जो आपसे एक ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, to be very honest, so it will require a lot of time। ठीक है, so कंफर्टेबल, लेट्स कीप सेकंड वन ऑप्शनल, जिसको इंटरेस्ट है वो करेगा, जो फिर मुझसे जो भी इनपुट चाहिए होगा वो मैं बताता जाऊंगा, और जिसको नहीं टाइम है या नहीं इंटरेस्ट है वो उस पे उसका चॉइस है। Is that okay? Okay, okay. Yes, sir, it is okay. There are options. Okay. So this will not even put a pressure for someone, and at the same time it will keep the door open for somebody who's interested in learning that extra case as well. Okay. So in terms of a couple of important things, just to ensure you guys prepare yourself. So I will start working on some case study, on building some case, so that we can start doing this. So I will work on some case study from a startup perspective, your batch. But parallelly, what I would suggest you guys to do individually in the coming weeks, so that we are good to take this from the next class, is a couple of things. One,
you've done couple, not in fact couple, more than Excel, couple of Excel sessions, correct? You've done, I think before you moved to KPMG, we had detailed, we had I think 4 or 5 Excel sessions, correct? Yes, sir. यस सर, एक सर एक टेक्स्ट करके था, वो कुछ रह गया था, वो Sorry? एक करना था सर। एक्सेल का सेशन हुआ था लेकिन उसमें कुछ टेक्स्ट रह गया था। Text to call, something like. हाँ हाँ, कुछ ऐसे वो करना था। टेक्स्ट का एक फॉर्मूला रह गया था। हाँ, कुछ आपने बताया था, वो हम लोग बाद में करेंगे करके। हाँ ठीक है, वो तो वही बता रहा हूँ। सो वो जो एक आपका टेक्स्ट का फॉर्मूला रोका हुआ है, वो तो अभी हम करेंगे जब वापस एक्सेल आप लेके हाँ हाँ, आओगे। ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, जो आपको कराया था वो प्लीज रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज उन सब का मुझे जरूरत पड़ेगा जब हम मॉडलिंग की नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे। प्लस जो एक Sure. फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि वो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, वो अभी जो सेशन स्टार्ट होंगे तो हम केस स्टडी लेंगे, उसमें हम यूज करेंगे, तो वो आपको वहाँ सिखा दूंगा। बट व्हाट आई वांट एवरीवन टू रिवाइज इन दिस कमिंग वीक इज कि जो भी मैंने आपको एक्सेल में अभी तक सिखा दिया है वो सारा प्लीज आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट क्लास से हमें उनकी सबकी जरूरत पड़ेगी। आई डू नॉट वांट कि हम मॉडलिंग की सेशंस में वापस एक्सेल के बेसिक्स पे जाके वो वाला टाइम वेस्ट करें। आई वुड प्रेफर कि हमने जो एक्सेल के सेशंस अटेंड करे हैं आप उसको अगर रिवाइज करके आएंगे तो आपको हेल्प होगा, स्पेशली दोज हु आर relatively new to the Excel, those who don't use Excel very regularly, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारा पीस रिवाइज करके आए, so that हम उस सेशन में मॉडलिंग पे फोकस करें rather than going back to the basics of the Excel. Is that? Yes, sir. Yes, So that's sir. the first thing that you need to do. Second thing, जो फोरकास्टिंग की हमने सेशंस करे हैं, फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग के सेशंस करे हैं, रेवेन्यू फोरकास्टिंग, कॉस्ट फोरकास्टिंग, केपेक्स, डेप्रिसिएशन, लोन, डेट, टैक्स कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ठीक है। ये जो हमने डिविडेंड का जो हमने किया, वेटेड एवरेज आपका नंबर ऑफ शेयर्स का हमने किया, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपने केपीएमजी सेशंस में करा था, बैलेंस शीट आपने पीएनएल जो किया होगा, रेशियो आपने केपीएमजी सेशंस में किया होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सब जो अभी तक हमने किया है, ठीक है, इसको भी प्लीज कमिंग वीक में आप रिवाइज कर लो, बिकॉज मुझे एज आई टोल्ड यू व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी विल व्हाट वी विल डू इन दिस केस स्टडी। जैसे यहाँ पे आपका एक एक्सेल सेक्शन है, मान लो ये एक्सेल है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो केस स्टडी हम लेंगे, ये जो आपके टॉपिक्स हुए हैं, ठीक है, ये सब टॉपिक्स का ही एप्लीकेशन यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आपको ये टॉपिक्स याद नहीं होंगे तो आपको इन सेशन में प्रॉब्लम आएगी। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको करने को? Yes, sir. सो व्हाट आई वांट कि हम इस सेशन में जो हम मॉडलिंग करने हैं, हमारे को फोरकास्टिंग करनी है, हम उस पर फोकस करें, रादर देन जब हम ये पढ़ाना शुरू करें तो आप मुझे बोले सर हमें ये याद नहीं है, वो याद नहीं है, फिर हमें वापस जाना पड़ेगा और ये सब चीजें वापस उस पर। आई वांट कि हम वहाँ टाइम वेस्ट ना करें और ज्यादा टाइम हम इसको आगे बढ़ाने में लगाए रादर देन गोइंग बैक। Guys, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो दो चीजें मैंने आपको बोली हैं। पहला, एक्सेल जितना मैंने कराया था वो रिवाइज कर लीजिएगा, कि एक्सेल में मैंने एक फॉर्मूला या दो फॉर्मूले जो रुकवाए थे वो हम करेंगे, तो उस पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो मैं कराऊंगा जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर जितना मैंने करा दिया है, हमने कंप्लीट कर लिया, वो आप प्लीज अच्छे से रिवाइज करें। आपके पूरा एक वीक है, सो आप आज भी कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिनका वीकडे में वर्किंग होता है या हेक्टिक होता है, so try and use some time today. I will give you some time back today, so that आप अभी भी अपना काम रिवाइज कर सके। प्लस once you're done with the Excel revision, जो बाकी टॉपिक्स मैंने आपको बताया जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, फोरकास्टिंग, अब रिवर्स स्टार्ट करना, पहले फोरकास्टिंग मॉडलिंग वाला रिविजन करना सेशंस,
जो सेशन आपके KPMG के बाद मैंने लिए हैं वो वाले, फिर PNL जो KPMG में आपने किया होगा, PNL प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फिर ये रिवाइज करना है, फिर आपको रेशियो वाला रिवाइज करना है, एंड लास्ट में आपको काउंटिंग प्रिंसिपल रिवाइज करना है। इस ऑर्डर में आप रिवाइज करेंगे इस कमिंग वीक में, एंड देन दिस इज व्हाट आई नीड फॉर बिफोर यू कम फॉर दिस नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम केस स्टडी मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। पैरेलली आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन सम केस स्टडी बिकॉज आप लोग स्टार्टअप चाहते हैं, सो आई नीड टू फिगर आउट समथिंग ऑन स्टार्टअप्स सो दैट आपको ये एक अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे सारा मिल जाए। क्लियर है हम दोनों के? मेरा क्या काम है कमिंग वीक में और आप लोगों का काम है, अभी बोथ आर टेकिंग some work for each of us, so are we clear with this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को कोई डाउट कुछ, because I do not want कि next week जैसे मेरे को ये समझ नहीं आता है, मेरे को ये डाउट था and stuff like that, and we unnecessary waste this modeling session. So just wanted to ensure कि has everybody understood what's required? Any questions out there? इन बिटवीन प्रैक्टिस अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Sorry, इन बिटवीन प्रैक्टिस हम लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो। हाँ जरूर कर सकते हैं। सो ईशान क्या करना, आपको जो डाउट आए अपने नोट पैड पे एक पेज बना लो, उस पर लिख लेना। सो नेक्स्ट क्लास में जितने भी आपके ड्यूरिंग दिस वीक आपके डाउट्स कोलेट होंगे, मैं वो सब डाउट्स आपको समझा दूंगा बिफोर आई स्टार्ट। ओके। ठीक है, एनीथिंग एल्स गाइस? डाइल्यूटिव ईपीएस को एक बार रिपीट कर दीजिए, उसकी इलस्ट्रेशन की कैलकुलेशंस। सो डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड ईपीएस हाँ, so this company has outstanding shares of 2 crores, ठीक है, और उसका प्रॉफिट 348 करोड़ है, and company has a convertible bond of 300 crores with an interest rate of 10%, और जो कन्वर्जन होगा वो 600 रुपीज इक्विटी शेयर के हिसाब से होगा, एंड टैक्स रेट इज 30%। ये क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई चीज आपको नहीं समझा बिफोर आई मूव टू कैलकुलेशन? नो सर, ये कैलकुलेशन सर इलस्ट्रेशन 1। तो 2 में डाउट नहीं है कुछ? नहीं सर, 2 तो क्लियर हो गया था कल, E1 में थी। ओके ठीक है, सो 1 करते हैं। सो ये भी सेम है, 2 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, 348 करोड़ प्रॉफिट, ठीक है। अब कंपनी ने 7 लाख के ईसॉप इशू करे हैं। ईसॉप क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब Yes. अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने 7 लाख के शेयर्स इशू करे हैं, जिसमें से 5 लाख का एक्सरसाइज प्राइस 600 है और 2 लाख का एक्सरसाइज प्राइस 1100 है। व्हाट डज दिस मीन? कि उन्होंने अपने 2 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए हैं, कैटेगरी ए एम्प्लॉयज एंड कैटेगरी बी एम्प्लॉयज। कैटेगरी ए एम्प्लॉयज को बोला है कि आप कंपनी से शेयर 600 रुपए में खरीद सकते हो, अगर खरीदने हैं तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और बी कैटेगरी एम्प्लॉयज को बोला है कि अगर आपको खरीदना है तो आपको 1100 रुपए में, 1100 रुपीज पर शेयर में मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस। नाउ अभी करंट मार्केट प्राइस 900 चल रहा है, तो कौन से एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे? एम्प्लॉय ए एक्सरसाइज करेंगे कि एम्प्लॉय बी एक्सरसाइज करेंगे?
कौन सा एम्प्लॉय जाके employee कंपनी से शेयर खरीदेगा, ए कि बी या दोनों? ए खरीदेगा, बिकॉज A मार्केट खरीदेगा। में ये मार्केट में शेयर 900 रुपीज का मिल रहा है, और कंपनी से आप कितने में खरीद सकते हो? 600 रुपीज में। Yes. जो बी कैटेगरी का एम्प्लॉय है वो तो मार्केट से 900 में खरीद लिया, कंपनी से क्यों खरीदेगा 1100 रुपए में? Yes. इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है। नाउ in terms of diluted EPS, तो कंपनी के 5 लाख के जो शेयर हैं एक्सरसाइज हो जाएंगे, तो 5 लाख के जो शेयर एक्सरसाइज होंगे ये एट 600 रुपीज ईच पे होंगे, तो टोटल कंपनी के पास 30 करोड़ पैसा आ जाएगा। ये 30 ये करोड़ है सब कुछ, इतना पैसा रेज हो जाएगा कंपनी का। यहाँ तक कोई डाउट? No. और कंपनी ने और कितने नए शेयर्स इशू कर दिए? 5 लाख, जिसको 0.05 करोड़ लिखा हुआ है। Yes. So ये दो में क्लियर है। फर्स्ट टू 0.05 एंड 0.05 एंड 30 करोड़ से Yes. क्लियर है। Yes. ठीक है। अब कंपनी के पास ये 30 करोड़ का पैसा आ गया, और कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में कितने का चल रहा है? 900. तो कंपनी ने 30 करोड़ लेके बायबैक कर लिया मार्केट से 900 रुपए के शेयर पे। तो कंपनी ने कितने बायबैक कर लिए? कंपनी ने इतने बायबैक कर लिए, 0.03 करोड़। सो ये CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, जो 900 रुपए चल रहा है। सो कंपनी ने इतने शेयर बायबैक कर लिए, यानी इतने 0.05 प्लस हुए एंड 0.03 माइनस हुए, तो नेट प्लस कितने हो गए? 0.02। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. सर बायबैक का थोड़ा question। The brought back कंपनी ने बोलिए। the bought back कहीं मेंशन तो नहीं था, बस करंट प्राइस अगर दिया और वो एक्सेस तो एग्जिस्टिंग प्राइस से तो हम लोग माइनस कर देंगे, राइट? नहीं, यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहाँ लिखा होना चाहिए था, वो मिस हुआ हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन में ना वो लाइन आइटम मिस हुई है बायबैक। बट ये इलस्ट्रेशन वही कंफ्यूजन था इसकी वजह से हम लोग वहीं पर ही मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था। हाँ, एग्री। ये प्रीवियस बैच में भी सेम मैंने बोला था। सो ये आई थिंक स्लाइड अभी अपडेट नहीं हुई है। सो ये फॉर्मेटिंग में वो लाइन मिस हो गई है, टेबल के पीछे चली गई है। तो आप लिख लीजिए, आपको कोई नोट करना है कि ये बायबैक कंपनी विल यूज दिस फंड्स टू बाय बैक एट अ मार्केट प्राइस। ये क्वेश्चन में लिख लीजिए, आपको लिखना है। सर तो कितने बायबैक हुए हैं शेयर्स? तो ये इतने बायबैक हुए ना 0.03। कंपनी ने सारा 30 करोड़ पैसा 900 रुपए पर शेयर पे खरीद स्पेंड कर दिया, तो 0.03 स्पेंड हुआ ना, 0.03 शेयर्स बायबैक हुआ। ओके सर। सर क्या बोली? सर इसमें कंपनी को फायदा है या घाटा? नहीं, बात फायदे और घाटे की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि क्वेश्चन में हमें जो बोला गया वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इट्स नॉट फायदा या घाटा वाली बात। ओके, क्योंकि बाई कर रहे हैं 900 में, सेल कर रहे हैं 600। बाय कर रहे 900 पे। हाँ, तो वो अलग अलग रीजन की वजह से है, ऐसा नहीं है कि वो आप वो करो। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहाँ पे चॉइस नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि ऐसा करो, और फिर डायलूटेड, अगर ऐसा कंपनी करती है तो डायलूटेड ईपीएस निकाल के दिखाओ, इज व्हाट वी आर डूइंग।
ओके ओके सर ये 23 अगस्त को जो सेशन हुआ था, अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट देयर, और उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो देयर वाज सम टेक्निकल इशू जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था वो। 3 अगस्त को कुछ टॉपिक, सो बिफोर वी गो टू दिस, कैपेक्स एंड डेप्रिसिएशन। अच्छा बिफोर वी गो टू दिस, पहले इसको खत्म करते हैं, देन आई विल टेक आपका ये क्वेश्चन। सो इसमें किसी को डाउट है अभी? तो इसको क्लोज करते हैं। सो अभी यानी क्या हुआ कि मेरे जो नए नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 2 करोड़ में प्लस 0.05 माइनस 0.03, तो हेंस मेरा टोटल न्यू नंबर ऑफ शेयर्स 2.02 हो गया, और प्रॉफिट 348 करोड़ है, तो 348 डिवाइडेड बाय 2.02, तो डायलूटेड ईपीएस आ गया। राइट, तो डाउट? क्लियर। हेलो हेलो, तो ये ऑडिबल। या ओके थैंक्स। सो ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ सर क्लियर। नो वो सर, आप नोट कर, आप नॉट। कहीं अपने नोट्स में कहीं पे आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में जो एक पार्ट मिसिंग है वो बायबैक वाला, वो नोट कर लीजिए कहीं पे, तो ये आई थिंक फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। अभी क्या 23 अगस्त से कुछ तो डेट आपने बोली थी, सो समबडी आस्किंग समथिंग, हाँ बोलिए, वो क्या क्वेश्चन था? उसका रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिला है? हाँ सर, कुछ टेक्निकल इशू हुआ था तो दैट कुड नॉट बी रिकॉर्डेड। कैपेक्स एंड डेप्रिसिएशन डिस्कस हुआ था। ओके ठीक है, तो मैं दामिनी से एक बार बात करता हूँ कि वो रिकॉर्डिंग का क्या इशू है, और अगर वो नहीं है तो फिर नाउ व्हाट इज द क्वेरी, उसमें उसका सेशन में कोई टॉपिक है, डाउट है क्या, मतलब व्हाट इज द कंसर्न, वो मिस हो गया है, क्या करना क्या है उसका? सर वो थोड़ा अगर ब्रीफली आप बता देते, since we have time for half an hour। ठीक है, पहले तो उसमें क्या, मेरे को टॉपिक याद नहीं है। सो केपेक्स आप बोल रहे हैं, केपेक्स कराया था, करेक्ट? यस सर, कैपेक्स एंड डेप्रिसिएशन फोरकास्टिंग के सर। हाँ, सो डेप्रिसिएशन में दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक डिमिनिशिंग मेथड होता है। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन मेथड तो आई थिंक शायद हाँ,
इस स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, आपका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है, सॉरी ये तो लोन रिपेमेंट है, ठीक है, इसमें है नहीं। सो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में सपोज अगर आपका 100 रुपीज़ का, लेकिन 1000 रुपीज़ का आपका एसेट है परचेज प्राइस, और द लाइफ ऑफ depreciation is suppose life of the asset is suppose 10 years. So every year इसको डिवाइड कर देते हैं इससे। So every year आप 100 रुपीज़ का depreciation लगाओगे, which means your calculation will be like this. You have opening balance, and let's assume this is year 1, this is year 2, and year 3. So your opening balance will become 1000, and then you have depreciation, which will be 100 rupees, and your closing balance will be this minus this, and next year opening balance becomes previous year closing balance, and again you will have 100. ये important point है, okay, and then again you have a closing balance of this. यहाँ पे फिर से 100 आ जाएगा, यहाँ फिर से 100 आ जाएगा, so ऐसे चलता रहेगा। So what is important, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, डिमिनिशिंग में क्या होता है, सेम चीज अगर डिमिनिशिंग में बनाते हैं, अगर डिमिनिशिंग है तो डिमिनिशिंग में डेप्रिसिएशन रेट होगा, द डेप्रिसिएशन रेट इज लेट्स अज्यूम 10%। तो उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो उस उतना परसेंटेज ऑफ ओपनिंग बैलेंस लगेगा, यानी अगले साल फिर से 10% ऑफ ओपनिंग बैलेंस लगेगा, और अगले साल फिर से 10% ऑफ ओपनिंग बैलेंस लगेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे, लेट मी हाईलाइट दिस इन ग्रीन, कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज, जो ग्रीन वाला है वो डिमिनिशिंग मेथड है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन हर साल कम होती जाएगी, बट स्ट्रेट लाइन में हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स्ड अमाउंट है। कुछ पूछना है इसमें डेप्रिसिएशन में? नो सर। ठीक है, सो ये दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के जो हमने थिंक करे थे। और सेकंड आपने क्या बताया, क्या टॉपिक कराया था मुझे? केपेक्स। हाँ, केपेक्स। फिर आपने केपेक्स बोला। नाउ केपेक्स होता है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कि कितना पैसा बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए लगाता हूँ। ये दो चीजों पर डिपेंड होता है, फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, एंड सेकंड होता है मेरा फ्यूचर व्यू। सो फॉर एग्जांपल, अभी मान लो कंपनी को लग रहा है फ्यूचर में बहुत डिमांड आने वाली है, बट कंपनी के पैसा ही नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। सिमिलरली अगर पैसा है बट फ्यूचर व्यू नहीं है, तो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कंपनी के पास पैसा है और कंपनी का व्यू है कि फ्यूचर में डिमांड आने वाली, हैंस एक्सपेंशन करना अच्छी बात है, तो ही वो एक्सपेंशन करती है। ये दोनों पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है फॉर कंपनी टू गो अहेड एंड डू केपेक्स। कोई डाउट यहाँ तक? राहुल, सॉरी,
whoever asked that question, I'm No, not sir. related. Understood. ठीक है, सेकंड पीस मैंने ये बताई थी कि जो केपेक्स होता है और जो सेल्स होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी अगर सेल्स बढ़ता है तो केपेक्स भी बढ़ता है, अगर सेल्स घटता है तो केपेक्स भी घटता है। तो ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं एक साथ। तो ये दो चीजें, ये एक बताई थी केपेक्स में, एक ये दो बताई, ये पूरा केपेक्स था। स्वप्नी, कोई डाउट? तो ये सेल्स इंक्रीज एंड केपेक्स इंक्रीज का एग्जांपल कोई हो सकता है? हाँ, तो ये सेम चीज है ना। तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में डिमांड आने वाली है, ये पॉइंट नंबर 2, फ्यूचर में डिमांड आने वाली का मतलब क्या? आपकी फोरकास्टेड सेल्स आप बढ़ा दोगे, करेक्ट? राइट सर, राइट सर। उस ज्यादा सेल्स को सपोर्ट करने के लिए आपको प्रोडक्शन भी तो बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी प्रोडक्शन का सेटअप, प्रोडक्शन फैसिलिटी, कैपेसिटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी। वही तो केपेक्स है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप फ्यूचर में कह रहे हो कि आपकी सेल्स कम होगी बट फिर भी आप नई मशीनरी लगाए जा रहे हो, केपेक्स बढ़ाए जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो इलॉजिकल लग रहा है ना। राइट। जैसे अभी अभी करंट पेंडेमिक में क्या कर रही है कंपनीज, कंपनी को सेल्स नीचे चली गई है, इसलिए कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, अपने प्लांट्स बंद कर दिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम कर दी। यही यही तो कर रही है ना वो, क्योंकि सेल्स कम हो रही है इसलिए कैपेसिटी कम कर रही है। जब फ्यूचर में वापस सेल्स बढ़ने के लिए जाएंगी या बढ़ने का व्यू आएगा तब फिर से प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगी। जैसे मारुति है, मारुति ने प्रोडक्शन कम कर दिया है। जो कार्स पहले अगर वो एक महीने में 20 कार्स बनाते थे, वो एक महीने में फिर 8 या 9 कार्स बना रहे हैं, क्योंकि सेल ही नहीं हो रहा है कार का। तो ये इस सेल, अब वो ये वाला सिनेरियो पेंडेमिक वाला, कि जब सेल नीचे कर दिया तो उन्होंने केपेक्स को भी नीचे कर दिया है। स्वप्निल, यस सर, विद यू। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपके कवर हो गए जो आप केपेक्स और डेप्रिसिएशन बोल रहे हो। फिर भी एक बार देख लेना, एटलीस्ट वो स्लाइड्स या पीपीटी जो है वो तो आपके पास होगी, करेक्ट? वो तो उस पे हाँ सर, वो LMS है। पे अवेलेबल। हाँ, यस तो सर। फिर भी एक बार वो देख लेना। अगर फिर भी कोई और चीज आपको उसमें ऐसी दिखती है जो आपको डाउट रहे तो मुझे बता देना, मैं वो श्योर। रिपीट कर दूंगा थैंक फिर यू। क्लास में। यस सर, थैंक यू। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? सर एक पूछना था, डिविडेंड डीपीएस है, देखिए इन योर एक्सेल यू पुट इट 1.6. when you're calculating DDT, dividend distribution tax, this is just a out of this thing question, are you calculating it at 1.6 or your total as the company tries to do within 1.6? देखो 1.6 है कि 1.2 है? 1.2 है ना? I'm sorry, 1.2. हाँ, सो रियल वर्ल्ड में 1.2 के अंदर ही होता है। तो वो क्या करते हैं, सो मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मेरे को 1.2 पे करना है, तो वो अनाउंस करेंगे 1, क्योंकि उनको पता है 1 अनाउंस करेंगे तो प्लस 0.2 का डीडीटी भी भरना पड़ेगा। ऐसे होता है रियल वर्ल्ड में। उनको जितना पे करना होता है वो फाइनल कर देते हैं और उसी के अंदर बाइफर्केशन कर देते हैं। बिकॉज अगर मैं 1.2 पहले अनाउंस कर दूंगा और अलग से मुझे डिविडेंड भरना पड़ेगा 0.3 का, तो मेरे तो एक्स्ट्रा पैसा चला गया ना, जो मैं देना चाहता था उससे ज्यादा बाहर चला जाएगा फिर। समझ आया सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? चलिए, ठीक है। सो अगेन जस्ट टू रिपीट, मैंने जो आपको बोला है करने के लिए इन दिस वीक, आपको एक्सेल रिवाइज करने को बोला है और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो रिवाइज करना है, बिकॉज मुझे ये सब चाहिए रहेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम मॉडलिंग की स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आप लैपटॉप लेके आएंगे अगर आप में से कोई फोन से डायलिंग करता, बिकॉज हम एक्सेल, वो मॉडलिंग एक्सेल में स्टार्ट करेंगे, सो वी विल नीड योर लैपटॉप, ठीक है। सो प्लीज ट्राई एंड इंश्योर कि वो जो लॉजिस्टिक्स आपको जरूरत है वर्क अराउंड करने की वो आप प्लीज कर लीजिए, ठीक है। एनी डाउट बिफोर वी क्लोज गाइस?
सर आई डोंट हैव अ डाउट बट आई हैव अ प्रॉब्लम. एक्चुअली मुझे जो वीडियो शेयर हुए ना वो फैक्ट 18 के ऑन यूट्यूब. सो इज देयर अ वे कि मुझे ये करंट बैच के वीडियो शेयर हो? नहीं समझ नहीं आया, दोबारा बोलो. अभी फैक्ट 20 चल रहा है बट यूट्यूब की जो वीडियो लिंक मिली है रिकॉर्डिंग की दैट इज फॉर फैक्ट 18 और उसमें भी मेजॉरिटी वीडियोस प्राइवेट है. वो आपका प्रॉब्लम है कि सबको प्रॉब्लम है ऐसा? मुझे तो फेस हो रहा है. अभी मुझे फैक्ट 18 के रिकॉर्डिंग्स मिले हैं. ओके ठीक है, तो दामिनी को मैं बोलता हूँ एक बार. आप दामिनी से एक बार दामिनी से बात कर लेना क्लास के बाद. मैं दामिनी को बोलता हूँ आपसे बात करें. एक्चुअली आई डोंट हैव कांटेक्ट नंबर ऑफ एनीवन. मैंने इंट्रोडक्टरी सेशंस मेरे क्लासरूम थे तो वो टाइम पे मैं ये बैच का पार्ट नहीं था. आप कौन से आप ऐप 18 आई के डोंट पास हैव है एनी क्या? कांटेक्ट. नो आई एम फ्रॉम फैक्ट 19 अहमदाबाद ब्रांच. सो शायद वो ही रीजन होगा कि आप किसी और कैटेगरी में या किसी और उसमें मैप हुए हुए होंगे, इसलिए आपको शायद वो लिंक वगैरह नहीं आया. तो जो भी आपका कोऑर्डिनेटर है, जो भी आपका कांटेक्ट है, उससे आप बात करो. सर बट वो बहुत ही डिले करता है. करंटली आई एम हैविंग वर्ड विद द अहमदाबाद ब्रांच बट बहुत ही डिले करते हैं. इट्स टू लैगिंग. तो आपको ईमेल काफी किससे आता है? फॉलोअप आपको सेशन का ईमेल किससे आता है? दामिनी से आता है, किससे आता है? सॉरी, सैरिश से आता है. सैरिश शेख. ओके. तो आपके पास दामिनी का कांटेक्ट नंबर नहीं है? नो सर आई डोंट हैव इट. ओके. आई एम नॉट श्योर. मैं दामिनी को बोलता हूँ आपसे बात करने को. आई एम नॉट श्योर कि उसके पास भी आपका कांटेक्ट डिटेल्स होगा नहीं, बिकॉज आपके कोऑर्डिनेटर जो मैप हुए हुए हैं, उस कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही आई थिंक आप बात कर पाओगे. तो आई डोंट नो. बहुत अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है. एंड अभी क्या प्रैक्टिकल चालू कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से. तो ये वीक है द लास्ट वीक जहाँ पे आई कैन रिवाइज ऑल द वीडियोस. क्योंकि मेरे लास्ट सेशन हुए तो मार्च में हुए. इनफैक्ट मेरे केपीएमजी के भी सेशंस कुछ मिसिंग है. तो वो सब आई वाज थिंकिंग टू कैरी आउट थ्रू वीडियोस बट अभी वीडियोस भी प्राइवेट है तो आई डोंट हैव एनी रिसोर्स टू रिफर टू. हाँ तो हर्ष, मेरे पास अभी रेडली तो आंसर नहीं है. मैं सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं, या तो आप दामिनी से बात कर लो या आपका जो कोऑर्डिनेटर, मैं यही दो सॉल्यूशन मुझे दिख रहे हैं. बिकॉज क्योंकि वो इशू आपके बैच का नहीं हो रहा है. आई थिंक बिकॉज हाँ, जो आपको आई थिंक जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा ना, वो रजिस्ट्रेशन शायद किसी और बैच में हुआ है. आप बोल रहे हो फैप 19 का हो, बट आप सेशन शायद फैप, तो आपका जो फैप 19 वाले बैच है उसमें आपको आई थिंक लिंक आ रहे होंगे. ठीक है, बट यू नीड टू चेंज योर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दैट बैच टू दिस बैच, जो आपके कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही हो सकता है. तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेटर. Do you have a number of Damini? Like, can you share the details of Damini? तो मैं उनसे डायरेक्ट एक बार बात कर लूँ. हाँ ठीक है, मैं दामिनी को बोल दूंगा, आपसे बात कर लेंगे. But how will she contact you? She won't be my details as well. दामिनी है यहाँ पे अभी? दामिनी कैन यू है इधर? कोई बात नहीं हर्ष, अगर दामिनी आपको इस वीक में कांटेक्ट नहीं कर पाती है, I've anyways noted your full name, so that should not be a problem for her to identify. So in case she doesn't reach out to you in this week, तो फिर next week मुझे बताना, then we'll work out something. Your registration name is like this only, Harsh Bhavsar, correct? Yeah. In fact, I'll just share my details over you on this chat. नहीं, जरूरत नहीं है वो सब करने की. तो Harsh Bhavsar is the name that I will pass on to Damini.
fine. And I was mapped in Ahmedabad branch. I was basically a part of classroom session, but due to COVID, हमारे sessions बंद हो गए थे classroom. So I shifted to online. ठीक है. ठीक है. So anything else? No, sir. नो सर. चलिए ठीक है. सो जो चीज़ें बोली हैं वो आप कर लीजिएगा. Parallelly, let me start working on some case study for you guys, and then we'll continue in the next class. Thanks. Bye. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.